make you the host, so you accept it, Okay. and then we can get started. I made you the host. Okay. Yeah. Thank you. Hmm. So let's start the program. I'll give you a brief introduction about NLP. So I'm just sharing my screen. एंड हम चाहते हैं कि सब लोग पार्टिसिपेट करें. क्वेश्चन जब वीरता पूछेगी, टेक्निक करवाएगी, सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करें. Hope everybody is able to see the screen. हाँ, दिख रहा है. Okay. Okay. So NLP stands for Neuro Linguistic Programming. It has been around since the 1970s. The co-founder of this program are Richard Bandler and John Grinder. So basically, neuro refers to our nervous system, the mental pathway of our five sensory organ by which we see, hear, feel, taste, and smell. Whereas linguistic refers to our ability to use language and how specific words and phrases mirror our mental world. It also refers to our silent language, such as the way we make our body posture, gestures, and habit that reveals to our thinking style and belief systems. So in short, NLP empowers, enables, and teaches us that better understand the way of our brain, that is neuro, process the words we use, that is linguistic, and how that can impact on our past, present, and future, that is programming. So basically, it gives us strategies for observing and understanding human behavior and learning from the best or worst of that. So we can conclude that NLP is more like how our thoughts, actions, and feelings work together to produce our life experience. So let's have a look where we can use NLP basically. So NLP has been used to treat a wide range of issues such as anxiety, phobias, and panic attacks, or like communications issues, post-traumatic stress, depression, ADHD, drug addiction, schizophrenia, and obsessions. Okay, there are certain tools and techniques which are very helpful to give you a new way of thinking that shapes our behavior on day-to-day basis. Today basically I'm going to exercise one of the technique with you all. तो मैं आपको 2 मिनट देती हूँ. आप ऐसे कोई सिचुएशन के बारे में सोच के रखिए जहाँ पे आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, like maybe someone in your family or like आपके किसी फ्रेंड्स के साथ या बिजनेस रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकती थी और आपको बुरा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हुआ वो पर्सन के साथ. तो ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उसके बारे में सोच के रखिए. Meanwhile, I'll just explain you how this technique works so that later on we can perform this activity together. Got it? Okay. 1 मिनट वीरता, मैं ऐड करूंगी. तो जैसे वीरता ने बोला, तो सब लोग सोचेंगे कोई भी एक रिलेशनशिप इशू या रिलेशनशिप प्रॉब्लम जिस किसी के साथ भी आपकी होगी, उसको सोच के रखेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर वर्क करेंगे. अभी हम लोग NLP यूज करेंगे. ठीक है, तो सब लोग सोच लेंगे, तब तक यू विल एक्सप्लेन. Okay. Again, I'm sharing my screen. Okay. So the technique which I was talking about, it's perceptual positions technique. So it is a fundamental technique of the NLP program. The ability to see things from another's point of view is a key success in understanding people and is important to communication process in relationships. So it will empower you to plan and act with wisdom and self-confidence in relationship with others. So okay, so like whenever you caught in a situation with someone where you feel fearful or you would like to have more choices to make a decision. So for example, like you may afraid of dealing with someone in a confrontation, or you may afraid of asking for a promotion to your boss.
so and that you feel you are deserve for it. So whatever might be your fear, it will take a few minutes to transform it to a personal effectiveness by using these perceptual positions techniques. तो अगर आपको कोई ऐसे फियर्स होते हैं जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते, तो ये परसेप्चुअल पोजीशन टेक्निक से क्या होता है, हमें थोड़ी सा तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लाइक आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आपको आप लाइक आपको लाइक लोगों के साथ लाइक जहाँ पे आपको बिजनेस में रिलेशनशिप बढ़ानी है या कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करना है, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाएगा और आप अच्छी तरह से डील कर पाओगे सबके साथ. Okay, let's have the look at how these positions works. So basically, this is the first position. It is a self position. When you step into this position, you are experiencing things through your own eyes, feeling your own physiology, looking at the situation with your own values. So you will have your own perspective on a particular situation. So यहाँ पे आपका खुद का पर्सपेक्टिव होगा. ओके तो मैं आपको फर्स्ट सिचुएशन के बारे में बताती हूँ. फर्स्ट सिचुएशन वो आपकी सेल्फ पोजीशन होगी, तो आपका जो भी पर्सपेक्टिव होगा और पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस तरीके से आप वो सिचुएशन को देखोगे, तो आप आपके खुद के इमोशंस के साथ आप एसोसिएट हो जाओगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोजीशन. Okay, so this is the second position. This is the other person's position with whom you want to resolve the conflicts. So when you step into the other person's shoes, then you need to think from his perspective and review the whole situation from his or her point of view. So being in another positions, you need to understand that you are being inside the experience of someone else, and this is called empathy. Arre. Okay, I just wanted to mention over here, like being empathetic with someone, it is the greatest power anyone can have. And I think this is the essence of our human behavior. तो आप ऐसी कोई सिचुएशन में देखो कि आप किसी का दुख बांटते हो, तो आप क्या करते हो, दुख बांटते हो तो उनके साथ अटैच होते हो, आप उनके इमोशंस के साथ अटैच होते हैं, राइट. सिर्फ ऐसे हम बोल के नहीं छोड़ते हाँ यार बड़ी दुख की बात है, फिर हम ऐसे इग्नोर नहीं करते, हम उनके इमोशंस के साथ उनके फीलिंग्स के साथ अटैच्ड होते हैं उनका दुख कम करने के लिए. तो हम हमें उनका दुख अपना लगता है. तो आपको सेकंड पोजीशन में यही करना है. जब आप जो अनदर पर्सन के पोजीशन में, लाइक व्हेन यू विल स्टेप इनटू द अनदर पर्सन शूज, यू नीड टू एसोसिएट विथ हिज फीलिंग्स. वो क्या सोचते होंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो आपको उनके इमोशंस के साथ एसोसिएट होना है. गॉट इट? ओके. अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल द स्टेप्स, दैट्स इट. Okay, so the third position is an observer position. So being in an observer position, you are going to observe and listen to the interaction between first position, that is yourself, and the second position, another, that is another person's position. So as an observer, be neutral without getting emotionally involved or entangled in your own or other people's needs. You can see things from an outside point of view, like a fly on the wall, and appreciate the other's perspective. Okay, so before we start the sessions, I just would like to share a very beautiful quote with you all. I recently read it somewhere, like I'll just share it.
Okay, so quantum physics also tells us that nothing that is observed is unaffected by the observer. It means that everyone sees a different truth because everyone is creating what they see. And I think this is so much related with this perceptual position. So the basic purpose of this exercise is that if you look at something from a number of different viewpoints, you can gain extra information which gives you a basis for making a wise choices. So for sometimes you feel it is very difficult to deal with certain kind of people or certain kind of like आपको ऐसे लगता है कि आप you are not easy to go along with some people. So then you start judging their behavior, their the way of their thinking and all. But you need to remember that every individual has a different map of the world. It means that every individual creates their reality on the basis of their life experience and their own beliefs and values. So yeah, but as a NLP coach, you can you can help them to see beyond their mental map, and you can make them understand that reality is totally different from the perception, so that they can be thinking differently of their own beliefs and value of life. So if you all are ready, can we start the activity, or we should wait for some to join someone others? हाँ, थोड़ा वीर तो थोड़ा वेट करेंगे और सबसे पहले जस्ट चेक एवरीबॉडी हैज गॉट अ प्रॉब्लम टू वर्क ऑन फर्स्ट, एंड फिर एक एक पोजीशन विल टॉक अबाउट दैट। थोड़ा सा इसी को और ब्रीफ में बता देना, और पहले जस्ट चेक एवरीबॉडी हैज गॉट अ प्रॉब्लम फर्स्ट टू वर्क ऑन। ओके, सो अब किसी को डिस्कस करना है क्या, लाइक और कुछ क्वेश्चंस है क्या कि ये पोजीशन कैसे, लाइक ये टेक्निक्स पे कैसे वर्क करना है? आप बताते जाएंगे ना कैसा हाँ, मतलब। I'll just guide you. I'll provide the guidelines and you just need to follow my instructions. राइट, तो पहले सबसे पहले जैसे अभिता ने बोला, डिड यू सबके पास एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है क्या? आपने सोच लिया कि किस चीज पे आपको काम करना है, कौन सा रिलेशनशिप प्रॉब्लम, राइट अभिता? यस यस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मे बी आपके फैमिली में किसी मेंबर्स के साथ आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या इवन बिजनेस रिलेशनशिप में भी लाइक आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि एट वर्क प्लेस ऑल्सो समटाइम्स वी गेट कॉन्फ्लिक्ट्स विद आवर कलीग्स, राइट? तो अगर आपका कोई ऐसे सिचुएशन है तो उसके बारे में सोच के रखिए। तो आई थिंक 2 मिनट लेते हैं अभिता, विल गिव 2 मिनट्स। यस सब यस, लोग श्योर। सब लोग वो सिचुएशन के बारे में सोचिए, किसी के साथ आपको कोई मन मुटाव है, या कोई कोई ऐसा सिचुएशन कभी हुआ जिसमें कि मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो कोई भी पहले वो प्रॉब्लम को सोच के रखें, बिकॉज एनएलपी टेक्निक उसी प्रॉब्लम पे अप्लाई होगा। तो सब लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए तो सब लोग बताएं अनम्यूट करके कि हो गया कि नहीं हो गया, हाँ, टाइम चाहिए क्योंकि आप। आप जब प्रॉब्लम पे अच्छी तरह से प्रॉब्लम पे सोचोगे ना, तभी ये टेक्निक वर्क हो पाएगी। क्योंकि जो भी आपका आपका पर्सपेक्टिव रहता है, राइट, वो प्रॉब्लम में, और आपको लगता है कि आपके पर्सपेक्टिव से या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिचुएशन राइट है, पर आप जब ये टेक्निक्स यूज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब आप डिफरेंट पोजीशंस में जाते हो, जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो अपोजिट पर्सन के पोजीशंस में जाते हो, तो आपको पता चलेगा कि there is a new perspective, or maybe we can have the solution on this problem. तो आपको ऐसी कोई सिचुएशंस के बारे में सोचो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना है। तो सबके पास आ गया प्रॉब्लम? सब लोग हाँ बोलो। सब मैंने बोला सब लोग को इंटरेक्ट करना है। हमारी आवाज आ रही है आप सबको? सिंपल, आई थिंक somebody is waiting in lobby. हाँ, तो यू है, मेरे पास होस्ट राइट नहीं है ना, यू Oh, जस्ट okay, okay, होस्ट राइट तुम्हारे पास है ना? okay, yeah. तो इन बिटवीन यू सी वो एडमिट करना पड़ेगा जो भी ज्वाइन करेंगे ना। Yes, yes, I'll do that, yeah. ठीक है, सो वी वर आस्किंग कि एवरीबॉडी इज रेडी विद प्रॉब्लम सिचुएशन। प्रॉब्लम मतलब एक सिचुएशन जिसको आपको रिजॉल्व करना है। सब लोग रेडी हो?
जयश्री ने लिखा है डन। बाकी लोग या तो अनम्यूट करके बोले, और जो कुछ क्वेश्चन है अभी तक जो बताया वीरता ने क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे अभी, फिर वो अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेगी कि कैसे करना है। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने? चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो या तो अनम्यूट करके बोलिए कि हाँ कर लिया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, हम लोग आगे बढ़ेंगे जिससे। हाँ कर लिया। ओके, ओनली कंचन हैज डन। व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ, उसको अभी ये उसपे सोचना है ना अभी उसपे। हाँ मतलब पहले तो सबसे पहले तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि कौन सी प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है। और एनी टेक्निक के बाद शुरू करना है ना कि नहीं, आपको पहले ही प्रॉब्लम सिचुएशन के बारे में सोचना है, क्योंकि तभी तो टेक्निक हम उस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी एक डिस्कस सिचुएशन। मत करो वो प्रॉब्लम के बारे में। यू डोंट नीड टू डिस्कस अबाउट दैट प्रॉब्लम। आप सिर्फ अपने मन में सोच के रखो हाँ जो भी आपके रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स है, या आपको ऐसे लग रहा है कि भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम में सिर्फ आप सोच के रखो। क्योंकि जब जैसे मैंने पोजीशंस बताए हैं, लाइक फर्स्ट पोजीशन में आपका व्यू पॉइंट होगा, लाइक आप क्या सोचते हैं वो प्रॉब्लम के बारे में, आपके क्या पर्सपेक्टिव है, और आप वो अपने खुद के इमोशंस के साथ एसोसिएट हो जाओगे। और जब आप सेकंड पोजीशन में आओगे, लाइक वेर यू वांटेड टू दिस इज द पोजीशन ऑफ द अनदर पर्सन विथ whom यू वांट टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? तो अब जब उसके पोजीशन में जाओगे, तो आपको उसके पॉइंट ऑफ से सोचना है, लाइक उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके इमोशंस क्या है, हाउ दैट पर्सन फील्स व्हेन ही गेट इनटू दैट सिचुएशन। तो आपको उसके हिसाब से पूरा वर्कआउट करना है। समझ में आया? लाइक हम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम किसी का दुख बांटते हैं, तभी उसके इमोशंस के साथ अटैच्ड होते हैं। तो आपको अपने आप को पहले डिसोसिएट करना है जब फर्स्ट पोजीशन में रहोगे। देन यू हैव टू गेट इनटू द अनदर पोजीशन, दैट इज द सेकंड पोजीशन। तब भी अगर आप अपने आप को डिसोसिएट करोगे अपने इमोशन से, तभी यू कैन गेट एसोसिएट विद द अदर पर्सन्स इमोशंस। गॉट इट? लाइक आपको उनके फीलिंग्स के बारे में सोचना है। तो ये लाइक ऐसे होता है कि तीन पोजीशंस होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस। जब फर्स्ट पोजीशन आपकी होती है, सेकंड पोजीशन वो अदर पर्सन की होती है जिसके साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, और थर्ड पोजीशन होती है वो आउटसाइडर की, ऑब्जर्वर, जहां पे आपको पूरा सिचुएशन एज अ थर्ड पर्सन देखना है। तो आप दोनों का कॉन्वर्सेशन सुनोगे, लाइक फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का, और विदाउट बीइंग जज और विदाउट बीइंग बायस, यू नीड टू कम टू कंक्लूजन कि ये बायस नहीं होना चाहिए कोई भी डिसीजन। जब आप दोनों के तरफ से पर्सपेक्टिव सोचोगे, तो आपको फिर आइडिया आ जाए कि किसका पर्सपेक्टिव राइट है, किसका रॉन्ग है। तो इस हिसाब से ये परसेप्चुअल टेक्निक्स वर्क होती है। हाँ, तो पहला स्टेप वही था कि हम जो पूछ रहे थे कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया क्या, फिर अभी एक एक स्टेप बताएगी वीरता, है ना वीरता? यस यस या। राइट। तो So यू वांट I'll provide you the एग्जांपल? guidelines while doing this हाँ, exercise. वीरता एक एग्जांपल दे दो ना, प्रॉब्लम किस टाइप का प्रॉब्लम के लिए बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी एग्जांपल दो। ओके, सोचो लाइक मेरा बिजनेस में या लाइक वर्क प्लेस पे मेरे किसी कलीग के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट है। तो लाइक हमारा प्रोजेक्ट एक साथ है, लेकिन ही डिसएग्री विथ माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, और मुझे लगा फिर, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर जब वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता है, तो देन आई फील लाइक इग्नोर किए जैसे मुझे फील हुआ। तो फिर मुझे लगा, अरे ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे साथ। तो हम सोचते रहते हैं बैक ऑफ द माइंड।
तो वो सिचुएशन फिर मैं ये कॉन्फ्लिक्ट्स ये इसमें परसेप्चुअल पोजीशन में रखूंगी, तो फर्स्ट मैं अपने बारे में सोचूंगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो सिचुएशन पे। फिर मैं क्या करूंगी, अरे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो लेट्स सी उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देन आई विल गेट इनटू इन हिज शूज, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी होल सिचुएशन अगेन। फिर मैं ऑब्जर्वर, एज अ ऑब्जर्वर थर्ड पर्सन के हिसाब से वो पूरी सिचुएशन देखूंगी। और अगर वो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है और उसका डिसीजन राइट है, तो विदाउट बीइंग बायस आई हैव टू एग्री दैट पर्सपेक्टिव। गॉट इट? अभी कुछ अभी समझ हाँ, में? आई थिंक अभी क्लियर हो गया। हाँ अच्छा, हाँ। जो लोग मैरिड लोग हैं, मैं उनके लिए सबसे इजी बना देती हूँ। जो हाँ वो मैरिड तो हैं, सबसे तो हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी चीजों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपका आर्ग्यूमेंट होता है, आपका हस्बैंड से या वाइफ से होता है। सब लोग एग्री करेंगे, नहीं एग्री करेंगे तो वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। सब लोग हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत सारी चीजों को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। सपोज सुबह उठने को लेके हो सकता है, अ, खाना को लेके हो सकता है कि अरे तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, खाने में नमक ज्यादा हो गया। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। लेट लेट सब मैं सबसे इजी बना दे रही हूँ सबके लिए, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी चीजों को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जो वीता बता रही कि ये प्रॉब्लम है, तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया, दिस इज अ प्रॉब्लम, जो हम बोल रहे हैं कि सब लोग आइडेंटिफाई करो, या तो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो सबको एक प्रॉब्लम मिल गया। नाउ उसके ऊपर बोल रही वीता कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। सपोज मेरा और मेरे हस्बैंड पंकज का कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी भी चीज पे, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इज फर्स्ट पोजिशन। फर्स्ट पोजिशन इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सेकेंड पोजिशन इज कि आई हैव टू थिंक फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। दैट इज सेकेंड पोजिशन। एंड थर्ड पोजिशन इज कि somebody कुछ स्टैंडिंग आउटसाइड एंड सीइंग कि हमारी किस बारे में बहस हो रही है, वो थर्ड पोजिशन होता है। अभी सबको क्लियर हुआ? दैट इज ऑब्जर्वर। तो ये तीन पोजिशंस है विच वीरता विल टेल अस वन बाय वन, एंड हमको उसी प्रॉब्लम पे वो अप्लाई करना है। अभी आई थिंक इट इज शुड बी क्लियर टू एवरीबडी। तो कोई भी एक सिचुएशन आइडेंटिफाई करे जिसपे हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी समझ में आ गया सबको? चलो, वीरता विल स्टार्ट नाउ। फर्स्ट पोजिशन यू टेल एंड लेट अस स्टार्ट। Okay, so first let's have a look like where we can use this technique. I'm just sharing my screen. Okay, so perceptual position can be used in a time of trying to understand another person's point of view, trying to resolve the current conflicts, trying to get over a past conflicts that still cause you pain and discomfort. And now we don't want to leave those things festering away. So a perceptual position gives you a way to review an old event or a future event. Have you ever noticed like people are talking about not exactly about the perceptual position, but sometimes we say, if you knew where it is coming from, or if you could walk a mile in my shoes, or I would like to be fly on the wall all there. So basically, we do perceptual position all of the time without noticing it. Perhaps not technically structured or much rigor. That is why we were not able to control on our output that we get it. So now let's have a look at what is the perceptual position are. So there are basically three positions I have already discussed with you, right? So I'm just वीरता अभी अभी तो बस तुम करवा दो वो एक्सरसाइज, अभी करवा okay. दो। लेट अस जस्ट स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज, एंड सब Okay. लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें, ओके। Okay, so you can do this activity by standing. तो हाँ, आपको तो सब खड़े लोग खड़े होना हो है. जाएं। हाँ, जस्ट जस्ट टेल द इंस्ट्रक्शन वीरता, वी विल डू। सब लोग खड़े हो Okay. जाएंगे अभी। चलिए, लेट अस डू इट नाउ, ओके। सब लोग खड़े हो जाएं। ये फर्स्ट पोजीशन वो बता रही है, वैसे वैसे फॉलो करेंगे। हाँ, Okay. You all are ready? Okay, so step into the first position. Close your eyes. Now review the whole situation. If you back there now, and how you fell out with that person. Think about the situation. Picturize the whole scenario. What was the conversation going on between both of you?
and what you were thinking at that point of time. How that made you feel? What was the point that you were trying to get across? And what was your perspective on that situation? Once you are done, show me a thumbs up so that we can move ahead. Done. Done? Okay, great. So just come out from that situation, step away. और थोड़ा सा अपने बॉडी को शेक करो, लाइक आपको यू नीड टू डिसोसिएट विद दिस इमोशंस. तो आपको थोड़ा सा बैकवर्ड नंबर्स काउंट करो, या कोई ऐसे आपके फेवरेट सॉन्ग के बारे में सोचो. तो आप थोड़ा सा यू नीड टू स्टेप अवे फ्रॉम दैट फीलिंग सो दैट यू नो यू विल बी एबल टू गेट इन टू द नेक्स्ट पोजिशन. Done? Right. Okay, great. So let's step into the second position. Close your eyes. Now review the whole situation. See, feel, and hear whole conversation between this person and yourself. Picturize the whole scenario again. What was the conversation going on between this person and yourself? How that made this person feel? What was the point that he was trying to get across? And most importantly, what was his perspective on that situation? If you are done, just show me a thumbs up. Okay, great. Done. Okay. So now again, shake it off, break state. आपको थोड़ा सा डिसोसिएट होना है पहले ये से फीलिंग के करते साथ. हैं. Okay. Okay, great. So now let's move to the next position. That is a third position. It is an observer position. So again, step into the third position. Close your eyes. Now, as an observer, run the entire conversation has been taken place between both the position. While watching and listening to the situation, unfold it as an observer. So from this neutral perspective, pay close attention to the interaction between these two people. Notice particularly how and what one does stimulates or triggers the other's emotions. If you are done, just show me a thumbs up. Done. Okay, great. So now step back to your first position. Okay. Now I'm going to ask you a few questions, like what was your experience when you stepped into another person's shoes? Like being in his emotion, how did you feel? आपको कैसा लगा जब आप सेकेंड पोजीशंस में थे, उनके इमोशंस के साथ एसोसिएट हुए थे, तो
बीइंग इन अनदर पर्सन्स पोजीशन, आपके फीलिंग्स क्या थे? आपको आपको कैसे फील हो रहा था? पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, ओके, बिकॉज उनका जो बिहेवियर था, जो एक्शन था, वो मेरे हिसाब से सही नहीं था। तो being in the shoes, I felt uncomfortable. Not uncomfortable, yeah. बट डिड यू ट्राई टू सी द सिचुएशन फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू? Yes, because that person has control issues. So at that point, that person is trying to control everything or control the situation, control the person. So that is where his action was coming from, wanting to control. Okay, so now one more question. So, being an observer, what Yeah. advice would you give to the person who is in first position? तो I आप would, अपने आप को कैसे देखोगे? क्योंकि ये तो होल सिचुएशन के बारे में आपने पिक्चराइज किया है, पूरा विजुअलाइज किया है। जब आप फर्स्ट पोजीशंस में थे तो आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू थे। जब आप सेकंड पोजीशंस में गए तो आप जो अपोजिट पर्सन है उनके इमोशंस के साथ एसोसिएट्स हो गए। तो आपको वहां पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हुआ। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल साइन। बट जब आप बीइंग एन ऑब्जर्वर, जब आपने दोनों के कॉन्वर्सेशंस को प्रॉपरली सुना, तो आपको क्या फील हुआ? आपका पर्सपेक्टिव क्या हुआ? बिकॉज यू आर गेनिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव इन दिस टेक्निक्स, राइट? लाइक जब आप एवरी पोजीशंस पे मूव होते हो तो यू आर ट्राइंग टू गेन अ न्यू पर्सपेक्टिव इन योर लाइफ। so as a third person, I'm saying that the person number one is a very submissive person, and person number two is a very aggressive person. So the aggressive person is trying to control the submissive person. And yeah, so that's what I see, that the other one's trying to control the other one, and the first person is not allowing that person to take control, and the situation gets out of control. See, again, you are here judging each and every person. Like you are also judging yourself as a submissive, and you are also judging another person as a controller. Yeah, So, like what I told you, NLP believes that every individual has a different map of the world. तो हम right, किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। उनका right, खुद का पर्सपेक्टिव होता है। इवन क्रिमिनल हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो right, हम विदाउट एनी जजमेंट हमें उनके पर्सपेक्टिव को देखना है। इट्स नॉट लाइक कि एवरी टाइम यू कैन नॉट जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर दे आर सेइंग। यू कैन right, सेट द बाउंड्रीज फॉर योर right, सेल्फ। बट लेकिन जब ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में होते हो तो आपको हर एक पर्सपेक्टिव पे वर्क करना है। तो right, देयर आर सम अदर टेक्निक्स ऑल्सो जो हेल्पफुल है कि आपका कोई ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो तो उस पे वर्कआउट हो सकता है। right. Okay. Okay, so another the last question. How are you going to act differently in next time when you encounter this kind of situation in future? Oh, definitely a bit more to think first before acting. Okay, Initially, great. the person, number one, at that time was not thinking, was being more reactive and was being more emotional. And now you cannot react. I mean, you have to react in a way where you are thinking before acting. Great. Initially, there was no thinking. It was just acting. Okay, so I'll just advise you, you just review these techniques again and do these positions, like again, बाद में पूरे position
because if unless and until it is that much intensity have the problem. But I think this is not the part of the NLP techniques. Okay. Okay. Yeah, I would also add, we are talking about a relationship problem. Relationship problems. No, but And it's not, NLP is not about necessarily about the relationship problems. It could be also about problem between two friends, right? Am I right? Yeah, but I would So suggest I'll give you you- can concern any therapist who can work on your psychological problem, because we need to think the psychology of rapist, because he's a criminal. So we cannot deal him as a normal person. So I think therapist is the right person who can, deal this kind of situations. Yeah, so basically there are some situations, especially where the criminal activities are involved. These are out of the conflict resolve situation of NLP, right? Between person one and person two is what So I'm right trying to now understand. we are not doing, right now we're just doing something which is related to family members or just personal Yeah.